وزیر تعلیم مرادرہ سے اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے چھوڑو پر اسکول اب اتنی دور جانا ہے، کوئی 10 کلومیٹر دور ہے، کوئی 20 کلومیٹر دور ہے، کوئی 50 کلومیٹر دور ہے، تو وہاں پہ جا کے ہمارے پاس تو وسائل نہیں وہاں جانے کے، سو اس لیے اس نے وہیں پہ اسکول کا ڈراپ آؤٹ ریٹ ہو گیا۔ میں ان چیزوں کے حل ابھی آگے آپ کو بتاؤں گا سارے، میں صرف ابھی ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ ایشوز کیا کیا ہے۔ جو دوپہر کا اسکول ہے نا، اس کو ہم نے آفٹرنون اسکول کا نام دیا ہے۔ سب سے پہلے آفٹرنون اسکول کے اندر جہاں پہ پرائمری اسکول کی 1 سے 5ویں تک کلاس چل رہی ہے، وہیں پہ ہم 6ٹھی دیں گے۔ یہ پہلے ایک پروگرام چلا تھا مگر ایک فیلڈ پروگرام تھا۔ کیوں فیلڈ پروگرام تھا؟ کیونکہ اس پہ کبھی فوکس کیا نہیں گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ چلا دو، ختم کرو، تنخواہیں نہیں دی، کچھ نہیں دیا، بالکل تباہ کر دیا۔ اس وقت ہم نے آفٹرنون سکولز کا پروگرام پورا بنا رہے ہیں، اس پہ اس وقت یو سی وائز کام ہو رہا ہے۔ 20 ڈسٹرکٹس کے اندر 20 ڈسٹرکٹس کے اوپر ابھی کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گا مارچ میں جب نیا سیشن شروع ہوتا ہے، آپ کو یہ کلاسز آگے نظر آئیں گی، تاکہ 6ٹھی 7ویں 8ویں ہم ادھر ہی دے سکیں جن پرائمری اسکولوں کے اندر آگے جگہ ہی نہیں تھی ایلیمنٹری اسکول جانے کی، وہیں پہ کلاسیں دیں گے۔ ابھی ہم ریسرچ کیوں کر رہے ہیں 20 ڈسٹرکٹس کے اوپر؟ تاکہ ان اسکولوں میں کمرے بھی تو ہوں، جگہ بھی تو ہو 6ٹھی 7ویں 8ویں کی دوبارہ پڑھانے کے لیے آفٹرنون کے اندر۔ آپ کہیں گے جی ٹیچرز کہاں سے آئیں گے؟ آپ بجائے کہ نئے ٹیچرز ہائر کریں، کیونکہ جب نیا ٹیچر آپ ہائر کرتے ہیں سیلری بھی دینی ہے، پینشن بھی دینی ہے، بینیفٹس بھی دینے ہیں، ہم صبح والا ٹیچر استعمال کریں جو کہ شام کو جا کے ٹیوشن بھی تو پڑھاتا ہے کہ نہیں؟ میں خود اسکولوں میں گیا ہوں اور میں نے جا کے دیکھا وہاں ٹیچر نہیں ہے جی کیونکہ شام کو ٹیوشن پڑھانا ہے، اس نے یہی کلاس ٹیوشن میں پڑھانی ہے جہاں پہ اسے پیسے بھی بنانے ہیں۔ ہم ان کو آنریریم دیں گے انشاءاللہ تعالی، وہ آنریریم دیں گے جس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ ایک تو ٹیچر بھی ہے اویلیبل، دوسرا ہمیں پینشن بھی نہیں دینی پڑے گی، ہمیں ایک سیلری بھی نہیں دینی پڑے گی، وہی ٹیچر اویلیبل ہوگا، کیونکہ وہ ٹیوشن میں بھی تو بندہ 20,000 روپے ہی بنا رہا ہے نا، تو وہی اگر ہم اس کو آنریریم میں دے دیں 15 اور 20,000 کے درمیان، تو وہاں پہ ضرور دوپہر کو پڑھائے گا اسی فیسلٹی کے اندر۔ سب سے ضروری چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں، ایک انٹیگریٹڈ ڈیٹا بیس سسٹم بنانے جا رہے ہیں جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس وقت سارے ڈپارٹمنٹس کے اپنے اپنے پی آئی ٹی بی کا اپنا ایجوکیشن کا سسٹم چل رہا ہے، پی ایم آئی یو کا اپنا چل رہا ہے، پیف کا اپنا چل رہا ہے، ٹیکسٹ بک بورڈ کا اپنا چل رہا ہے، سارا سب کا اپنا اپنا چل رہا ہے۔ ہم ایک انٹیگریٹڈ ڈیٹا سسٹم بنانے جا رہے ہیں جس کے لیے پی سی 1 اس وقت تیار ہو رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ایسی چیز نظر آئے گی جس کے اندر سارے 4.5 لاکھ ٹیچر بھی بیچ میں ہوں گے، سارے اسٹوڈنٹس بھی بیچ میں ہوں گے، سارے امپلائیز بھی بیچ میں ہوں گے، میں بھی اس کے ساتھ بیچ میں ہوں گا سسٹم کے، جو بھی کنیکٹڈ ہے ایس سی ڈی کے ساتھ وہ اس کے اندر ہوگا، تاکہ یہ جو ہر جگہ ہو رہی تھی نا پتہ نہیں لگ رہا تھا کون کیا کر رہا ہے، ساری چیزیں ایک جگہ سے شروع ہوں گی اور ایک جگہ ختم ہوں گی۔ جس کے پاس پاسورڈ ہوگا وہ اپنے فون پہ بیٹھ کے ڈیٹیل دیکھ سکتا ہے، کسی چیز پروموشنز ہوں گی، ایک سب فائدے لے کے پھر رہے ہیں بجائے کہ سب منتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کی۔ سسٹم ایسا بنائیں یہ جو ٹرانسفر ہے بٹن دبائیں ٹرانسفر ہو جائے۔ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ 3 مہینے سے مجھے میرے خیال سے ایجوکیشن منسٹر نہیں ٹرانسفر منسٹر ہونا چاہیے تھا، جتنی دنیا میرے پاس ٹرانسفر کے لیے آ چکی ہے۔ اس طرح کا تو سسٹم نہیں ہونا چاہیے، ہم نے تو بیٹھ کے پالیسی پہ کام کرنا ہے کہ سارا دن بیٹھ کے ٹرانسفر کرتے رہنا اور ان کو لوگوں کو سمجھاتے رہنا ہے کہ جی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، جو میرٹ پہ نہیں ہے اس کی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ سو اس لیے یہ سسٹم بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ سارے جو مسائل آتے رہے ہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم مرادرہ سے اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جو کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کلمہ چوک پر عوامی رکشہ یونین کا احتجاجی مظاہرہ، رکشہ ڈرائیورز نے میٹرو ٹریک پر دھرنا دے دیا جس کے باعث بس سروس ہے جو کہ معطل ہو چکی ہے۔ ایل پی جی کا سرکاری ریٹ 113 اور فروخت 170 میں کی جا رہی ہے۔ مظاہرین کی جانب سے یہ تحفظات سامنے آئے ہیں۔ مارکیٹنگ کمیٹیاں، ڈسٹریبیوٹر، دکاندار منافع خوری میں ملوث ہیں۔ مظاہرین کی جانب سے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ڈی سی لاہور گیس کی قیمتوں میں گرا فروشی پر کارروائی کریں
ये मुतालिबा सामने आया है। रिक्शा ड्राइवर्स की बैनर्स, प्ले कार्ड्स उठाकर शदीद नारेबाजी की जा रही है। मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कलमा चौक पर अवामी रिक्शा यूनियन का एहतजाजी मुजाहिरा जारी है, जबकि बस सर्विस मुअत्तल हो चुकी है। रिक्शा ड्राइवर्स ने मेट्रो ट्रैक पर धरना दे दिया है। एलपीजी का सरकारी रेट 113 और फरोख्त 170 में की जा रही है। मुजाहिरीन की जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं, जबकि ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मार्केटिंग कमेटियां, डिस्ट्रीब्यूटर्स, दुकानदार मुनाफा खोरी में मुलव्विस हैं। डीसी लाहौर गैस की कीमतों में गिरा फरोशी पर कार्रवाई करें। अब आपको बताएं, कोट लखपत जेल में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मेडिकल चेकअप मुकम्मल हो गया। प्रिंसिपल जिना अस्पताल आरिफ तजम्मुल की सरबराही में 5 रुकनी डॉक्टर्स ने तिबी मुआयना किया। शहबाज शरीफ को गर्दन और कमर में दर्द की शिकायत थी। डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा गया है, डॉक्टर्स ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के लिए अद्वियात तजवीज़ कर दी हैं, जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना 1 घंटा जारी रहा। आपको बताएं कि कोट लखपत जेल से ये खबर है, जहां पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मेडिकल चेकअप मुकम्मल कर लिया गया है। प्रिंसिपल जिना अस्पताल आरिफ तजम्मुल की सरबराही में 5 रुकनी डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयना किया है, जबकि इस हवाले से डॉक्टर्स का कहना है कि शहबाज शरीफ को गर्दन और कमर में दर्द की शिकायत थी। डॉक्टर्स ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के लिए इस हवाले से अद्वियात भी तजवीज़ कर दी हैं और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना 1 घंटा जारी रहा। जी हां, 1 घंटा जारी रहने वाले तिब्बी मुआयने में डॉक्टर्स की जानिब से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को अद्वियात तजवीज़ की गई हैं। प्रिंसिपल जिना अस्पताल आरिफ तजम्मुल की सरबराही में 5 रुकनी डॉक्टर्स ने उनका तिब्बी मुआयना किया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी कोट लखपत जेल की हवा खा ली। कोट लखपत जेल में 2 साबिक वज़ीर आज़म कैद काट चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मलिक मेराज जेल में कैद रहे। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, कोट लखपत जेल 1967 में जो है रक्शबील की यूनियन काउंसिल में बनाई गई, जहां पर इसमें जो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये इंतहाई ज़रखेज़ रही है सियासतदानों की कैद के हवाले से। सबसे पहले यहाँ पर हनीफ रामे को 1971 में मुंतकिल किया गया और यहाँ पर उन्होंने अपनी सियासी जो वजूहात पर यहाँ पे कैद काटी। उसके बाद रसूल बख्श पलेजो 1977 में आए और सबसे जो कद्दावर शख्सियत थी पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो 1978 में यहाँ पर मुंतकिल किए गए, जिन्होंने अंडर ट्रायल तकरीबन 1 साल का अरसा यहाँ पर कैद काटी, जिसके बाद उनको पिंडी जेल में मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद ज़ियाउल हक के दौर में जो जमहूरियत की बहाली के लिए तहरीक चलाई गई थी, जिसमें नवाबजादा नसरुल्लाह खान और उनकी बड़े पैमाने पर जो साथी थे, इनमें मलक मिराज खान, मलक मिराज खालद समेत दीगर अहम सियासी शख्सियात जो थीं वो यहाँ पर रहीं। और उसके बाद यहाँ पर जो सियासी शख्सियात की एक तांता बंद गया, जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा काबिल ज़िक्र हैं जहांगीर बदर, जिनको यहाँ पर अहम सज़ा दी गई, एहतजाज हसन, मलक मुश्ताक अवान, इसके साथ साथ दीगर जो अहम पीपल्स पार्टी की शख्सियात थी, उन्होंने यहाँ पर कैद बंद की सहूलतें काटी। और सबसे अहम तरीन बात जो है वो मौजूदा जो हालिया शहबाज शरीफ को यहाँ पर मुंतकिल किया गया है, उनके पसंदीदा शायर हबीब जालब ने भी मुतअद्दिद बार इसी को जेल की हवा खाई है और वो मुतअद्दिद बार यहाँ पर सज़ा काट चुके हैं। मुशर्रफ दौर में यहाँ पर साद रफ़ीक को रखा गया, जवेद हाशमी ने यहाँ पर काफ़ी अरसा कैद काटी है। इसके साथ साथ बिलाल यासिन भी यहाँ पर रहे और इसके बाद आसफ़ अली ज़रदारी ने अपनी कैद का बहुत सारा हिस्सा यहाँ पे गुजारा है। और आसफ़ अली ज़रदारी के बारे में कहा जाता है कि वो इसी सिक्योरिटी वार्ड में मौजूद रहे, वहाँ पर उन्होंने एक पौधा लगाया और रोज़ाना की बुनियाद पर वो इसकी हिफाजत भी करते रहे। जो अब सबसे लेटेस्ट बात है, वहाँ पर कल मियाँ शहबाज शरीफ को मुंतकिल किया गया था और आज भी वो वहीं पर मौजूद हैं। इसके बाद हुकूमत का फ़ैसला होगा, अदालत का फ़ैसला होगा, आया वो यहीं पर रहेंगे या उनको किसी रेस्ट हाउस में नज़रबंद किया जाएगा। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ जो उनका वहाँ पर सिक्योरिटी वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर उनका तिबी मुआयना भी किया जा रहा है और डॉक्टर्स वहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये इंतहाई तारीखी अहमियत जी अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे कस्टम इंटेलिजेंस की कार्रवाई के हवाले से। स्मगलशुदा गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कस्टम इंटेलिजेंस ने 2 स्मगलशुदा गाड़ियां तहवील में ले ली हैं। इसी हवाले से बात करेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान नकवी, आगाह कीजिए इस कार्रवाई के हवाले से।
جی بالکل، شہر کے مختلف علاقوں میں چلنے والی نان ڈیوٹی پیڈ گاڑیوں کے خلاف کسٹم انٹیلیجنس کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ کسٹم انٹیلیجنس کی ٹیم نے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے 2 اسمگل شدہ گاڑیاں جو ہیں بحق سرکار ضبط کی ہیں۔ یہاں پہ کسٹم انٹیلیجنس لاہور کے سپرنٹینڈنٹ سیف ہنجرا موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سیف صاحب، یہ بتائیے گا کہ ان گاڑیوں کی مالیت کتنی ہے اور یہ کس طرح سے لے آتے ہیں یہاں پہ اور کس طرح چلا رہے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے افسران کی ہدایت کے مطابق ان گاڑیوں کے خلاف ہم نے ایک کمپین شروع کی ہے اور ہم نے یہ 2 گاڑیاں لاہور سے پکڑی ہیں، ایک ڈیفینس سے پکڑی ہے، ایک دوسرے علاقے سے پکڑی ہے۔ ان کی مالیت تقریباً 70 لاکھ کے قریب ہے اور انشاءاللہ ہماری ٹیم جو ہے پورا زور لگا رہی ہے اور ہم اس اور بھی گاڑیاں مزید فیوچر میں پکڑنے کا ارادہ ہے ہمارا۔ یہ بتائیے کہ یہ کہاں سے آتی ہیں یہ گاڑیاں؟ یہ مختلف بارڈر سے ہی آتی ہیں اور اسمگلر حضرات جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں اور یہ ہمارے جو ادھر لوگ ہیں ان سے خریدتے ہیں اور یہ وہ اپنے استعمال میں رکھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ سپرنٹینڈنٹ کسٹم انٹیلیجنس بتا رہے تھے کہ یہ 2 اسمگل شدہ کاریں ہیں جو کہ ڈی ایچ اے اور دیگر علاقوں سے بحق سرکار ضبط کی گئی ہیں۔ ان کی مالیت کسٹم انٹیلیجنس حکام کے مطابق 70 لاکھ روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے اور یہ گاڑیاں جو ہیں یہ پشاور اور کوئٹہ سمیت دیگر علاقوں سے جو ہے وہ لاہور تک پہنچائی جاتی ہیں اور یہاں پہ ان گاڑیوں کے خریدار جو ہیں وہ یہ گاڑیاں۔ پنجاب میں چیف اکانومسٹ کی سیٹ 2 سال سے خالی پڑی ہے۔ حکومت جوائنٹ چیف اکانومسٹ کو اضافی چارج دے کر کام چلانے لگی ہے۔ ڈاکٹر ایمان اللہ اضافی چارج پر چیف اکانومسٹ کے فرائض سر انجام دینے لگے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے علی رامے سے۔ جی علی رامے۔ جی بالکل، پنجاب میں چیف اکانومسٹ کی نشست جو ہے وہ گزشتہ 2 سال سے خالی ہے اور اس کے حوالے سے پی این ڈی بورڈ کی طرف سے پنجاب حکومت کی طرف سے کوئی خاصی دلچسپی کا جو ہے وہ رد عمل ان کا سامنے نہیں آیا اور اس کی وجہ سے یہ کہ اس پوسٹ پر ایک ٹیکنیکل آفیسر کی ضرورت ہے جو کہ خاص طور پر ماہر معاشیات کے حوالے سے، اقتصادیات کے حوالے سے خاصی چھان بین جو ہے وہ رکھتا ہو۔ تو دوسری طرف اب پی این ڈی بورڈ کی طرف سے اس نشست کو، اس سیٹ پر کام کو چلانے کے لیے جوائنٹ چیف اکانومسٹ جو ہے ان کو تعینات کیا گیا، ڈاکٹر ایمان اللہ جو کہ وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس سے قبل سابق ڈی جی ایل ڈی اے نبیل جاوید کو اس پوسٹ پر تعینات کیا گیا تھا لیکن ایک ہی دن بعد ان کا ٹھیک ہے علی رامے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، پاکستان کرکٹ بورڈ نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے کھلاڑیوں کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے۔ سرفراز احمد کی قیادت میں 16 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ محمد عامر، شان مسعود اور فخر زمان کی ٹیم میں واپسی۔ محمد رضوان ٹیم میں دوسرے وکٹ کیپر کے طور پر شامل ہیں۔ ٹیم میں امام الحق، فخر زمان، شان مسعود، اظہر علی حارث، سہیل شامل ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا ہے اور محمد عامر، شان مسعود اور فخر زمان کی ٹیم میں واپسی بھی ہوئی ہے۔ محمد رضوان ٹیم میں دوسرے وکٹ کیپر کے طور پر شامل کیے گئے ہیں جبکہ ٹیم میں امام الحق، فخر زمان، شان مسعود، اظہر علی حارث، سہیل شامل ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سرفراز احمد کی قیادت میں 16 رکنی ٹیم کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم فضیل اصغر اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ مجھے پرائز ملا تھا فار دی بیسٹ باسکٹ بال پلیئر، میڈل، گولڈ میڈل۔ تو اس میں بھی یہ ہوا کہ میں جب پرائز لینے کے لیے گیا تو اس سے پہلے 2 کیڈٹس اور چلے گئے اور انہوں نے میرے آگے والے کیڈٹ کا ایک انعام ایکسٹرا دے دیا۔ تو میری باری آنے تک میرا میڈل اس کو پہنایا جا رہا تھا جس کا پرائز پہلے کو لے گیا۔ اینی وے وہ اس چکر میں پھر وہ بعد میں اس کی درستگی بھی ہوئی لیکن وہ ایک موقع تھا جو مجھے یاد آیا۔ تھرڈ، آپ کے یہ ننے منے بچوں کو دیکھ کے ہاسٹل لائف کی یاد تازہ ہو گئی کہ میں بھی بہت ہی چھوٹا تھا کلاس کے 0 میں جب والدین کا اکلوتا بیٹا ہاسٹل میں چھوڑ دیا گیا فار مائی بیٹرمنٹ اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے اچھے اسکول اور اچھے ہاسٹل میں رکھا۔ اس طرح آپ لوگ بھی ہاسٹل میں ہی ہیں۔ ہاسٹل کی لائف بہت انجوائے کرنے والی لائف۔ آپ لوگوں کو، بچوں کو آئندہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں چلے جائیں گے تو ہاسٹل کی بڑی یادیں آئیں گی۔ تو اس لیے میری آپ کو یہ ایڈوائز ہوگی، نصیحت ہوگی کہ ہاسٹل کی لائف کو جتنا آپ لوگ انجوائے کر سکتے ہیں ضرور کریں کیونکہ فرینڈس کے ساتھ مل بیٹھنے کا یہی ایک موقع ہے۔ اس کے بعد پریکٹیکل لائف سٹارٹ ہو جائے تو پھر
मुलाकातें भी कम हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ हॉस्टल में डिसिप्लिन और पढ़ाई में अच्छी कारकर्दगी और साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी वाले स्टूडेंट्स बाद में उनके माइंड भी उतने शार्प होते हैं जितना वो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। तो आपको ये दिन याद आएंगे, इसलिए इसमें हंस खेल के दिन गुजारें। किसी डिप्रेशन की ज़रूरत नहीं है, खुश रहें। आपके यहाँ पे इंतज़ाम भी बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर आसिफ हमारे एडिशनल सेक्रेटरी होम, ये मुझे बड़ी खुशी हुई है इंस्टीट्यूशन देख के और आपके सारे इंतज़ाम डॉक्टर साहब देख के, आपके और आपकी टीम के। माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी एनवायरनमेंट यहाँ पे पैदा की हुई है और बच्चों के लिए खासी सहूलियात भी हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों के लिए जितना हम गवर्नमेंट की तरफ से कर सकें, होम डिपार्टमेंट जितना भी कर सके, मुझे आप इसमें पेश पाएंगे और जो आपकी ज़रूरियात हों वो डॉक्टर आसिफ को बताएं। और मुझे पता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको बड़ा टाइम देते हैं और इस चीज़ की ज़रूरत भी है क्योंकि आप सब बच्चे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम फजील असगर इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं, जो कि मनाजिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं। तभी आपको बताएं, हुकूमत को आखिरकार मुस्तकिल चेयरमैन शेख ज़ायद अस्पताल तकरीरी का ख्याल आ ही गया। 60 बरस उम्र तक के प्रोफेसर से 21 दिसंबर तक दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। इसी बारे में मजीद जानते हैं जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी बताएगा, चेयरमैन तैनाती के लिए क्या हिकमत अमली तरतीब दी गई है? जी, हुकूमत की जानिब से शेख ज़ायद अस्पताल के नए चेयरमैन के तकर्रर के लिए जो है वो दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो इश्तिहार जारी किया गया, जिसके तहत जो है वो तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरे उतरने वाले जो प्रोफेसर्स हैं, जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र की हद है वो 60 बरस है और वो एप्लीकेंट जो हैं वो हो सकते हैं, उनसे दरख्वास्तें तलब की गई हैं। चेयरमैन शेख ज़ायद अस्पताल जो है इसके ओहदे के लिए दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 21 दिसंबर मुकर्रर की गई है। 21 दिसंबर तक ये दरख्वास्तें मौसूल की जाएंगी और उसके बाद जो है दरख्वास्तें वसूल करने के बाद जो है इसके ऊपर मज़ीद जो है वो फर्दर आगे पेशरफ्त होगी, इनके इंटरव्यूज़ होंगे और किसी मौजू उम्मीदवार को चेयरमैन शेख ज़ायद अस्पताल जो है वो 3 साल के अरसे के लिए जो है वो तैनात किया जाएगा। इससे कबल जो है वो चेयरमैन शेख ज़ायद अस्पताल का ओहदा जो है वो अप्रैल में खाली हुआ था, जिसके बाद जो है वो आर्जी तौर पे जो है वो अरेंजमेंट किया गया था और प्रोफेसर कामरान जो हैं उनको चेयरमैन शेख ज़ायद अस्पताल जो है वो तैनात किया गया था, उनको इस ओहदे का इजाफी चार्ज दिया गया था। लेकिन अब एक मरतबा फिर हुकूमत की जानिब से चेयरमैन शेख ज़ायद आ रही हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे मेयर ऑफ हॉन्सलू सुमैया चौधरी की एलडी ऑफिस आमद। एडिशनल डीजी हेडक्वार्टर्स ने उनको ब्रीफिंग दी है। मेयर ऑफ हॉन्सलू को 1 विंडो सेल का दौरा भी कराया गया है। दौरे का अहवाल जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब। आज ही मेयर ऑफ हंसलो लंदन समिया चौधरी ने आज एलडीए के दफातर का विजिट किया है। एलडीए के हवाले से एडिशनल डीजी हेडक्वार्टर अब्दुल शुक्र राना ने उनको ब्रीफिंग दी है। एलडीए के मुख्तलिफ अमूर के मुतल्लिक भी उनको आगाह किया गया है। इस हवाले से जो समिया चौधरी उन्होंने एलडीए के अमूर से रिलेटेड ख़ास तौर पर वासा जो पानी का एक सेक्टर है उस पर बड़ी बात की है। अब्दुल शुक्र राना साहब, क्या ब्रीफिंग दी गई एलडीए के हवाले से और आप मुस्तकबिल में ख्वाह होंगे कि इनके तजुर्बा से फ़ायदा उठाएंगे? जी, इसमें हमने मेनली अपने एलडीए के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में बताया और अपनी हमारी जो 2 एजेंसीज़ हैं वासा और टीपा के बारे में और इनकी वर्किंग के बारे में बताया है और हमारे जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में भी हमने इनको ब्रीफ़ किया। इसके अलावा हमारे जो इनिशिएटिव हैं स्पेशली जो है वाटर के हवाले से, वाटर की कंजर्वेशन के हवाले से और यूसेज के हवाले से, वो सब जो है ना हमने ब्रीफिंग में इनको बताया है। इसके अलावा 1 विंडो का इनको हमने विज़िट करवाया और बताया किस तरह जो है लोगों के मसाइल जो है हम यहाँ पे एक ही छत के नीचे हल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। समिया चौधरी साहिबा हमारे साथ हैं। मैडम, आप बहुत कीन इंटरेस्टेड थी पानी के मसाइल पे ख़ास तौर पे, और आप ये भी थी कि आपके जो फ़ायदे से अगर कोई एलडीओ को फ़ायदा होता है, लाहौर के वाटर टेबल को फ़ायदा होता है उसको हो, और सुप्रीम कोर्ट के भी जिस तरह चीफ जस्टिस साहब गए हुए थे लंदन, आपने उनको भी गाइड किया। थोड़ा बताइएगा आपका क्या विजन? आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट। मुझे आफ्टर द डैम फंड्स के ये जो हमने सारे वहाँ पे फंक्शंस अटेंड किए थे, मुझे बहुत इंटरेस्ट हो रही थी कि हाउ वी आर डेवलपिंग, व्हाट आर वी डूइंग इन पाकिस्तान। सो इन माय ऑफिशियल विजिट आई थॉट दिस इज़ द बेस्ट थिंग where I can come and speak to the people, and I've been really honoured here
कि मैंने पूरे दफ्तर को देखा है। स्पेशली मैंने यहाँ पे देखा है कि हर मसाइल के लिए जो भी हैं यहाँ पे औरतें भी इन्वॉल्व हैं, एंड आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट। दे आर डूइंग रियली गुड एंड ब्रिलियंट वर्क, एंड टुगेदर विद देम आई एम हैप्पी टू वर्क। जहाँ से भी हम अपने एक्सपीरियंस को यूके से ला के इकट्ठे बैठ के कोई भी जो बात है वो कर सकते हैं। एंड आई बी ऑनर्ड एंड आई से थैंक यू वेरी मच टू ऑफ देम कि उन्होंने टाइम दिया, एंड वी जस्ट सीन व्हाट्स गोइंग ऑन इन हियर इन एलडी। थैंक यू समीर चौधरी। अभी आपके साथ समिया चौधरी थी और उन्होंने डिटेल में ये बात। ठीक है दुर्रे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता लॉ ऑफिसर्स को फारिग कर दिया गया, जबकि पंजाब हुकूमत ने पीटीआई के हिमायत याफ्ता लॉ ऑफिसर्स को तैनात कर दिया है। जी हाँ, वजीर आला की मंजूरी के बाद लॉ अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एडिशनल एडवोकेट 18 जनरल और 42 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल तैनात किए गए हैं। साबिक दौरे हुकूमत के तैनात 5 एडिशनल एडवोकेट जनरल ओहदों पर बरकरार हैं। आपको बता रहे हैं पंजाब हुकूमत ने पीटीआई के हिमायत याफ्ता लॉ ऑफिसर्स को तैनात कर दिया है, जबकि वज़ीर आला की मंजूरी के बाद लॉ अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 18 एडिशनल एडवोकेट जनरल, 42 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल से जिन्हें तैनात किया गया है। साबिक दौरे हुकूमत के तैनात 5 एडिशनल एडवोकेट जनरल ओहदों पर बरकरार हैं। आपको बताते चले कि मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता लॉ ऑफिसर्स को फारिग कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने पीटीआई के हिमायत याफ्ता लॉ ऑफिसर्स को तैनात कर दिया है। वजीर आला की मंजूरी के बाद लॉ अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। 18 एडिशनल एडवोकेट जनरल, 42 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल तैनात, जबकि साबिक दौरे हुकूमत के तैनात 5 एडिशनल एडवोकेट जनरल ओहदों पर बरकरार हैं। मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता लॉ अफसरान फारिग, पंजाब हुकूमत ने पीटीआई के हिमायत याफ्ता लॉ अफसरान तैनात कर दिए हैं और वजीर आला की मंजूरी के बाद लॉ अफसरान की तैनाती का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 18 एडिशनल एडवोकेट जनरल्स भी तैनात कर दिए गए। खबर आपको देंगे टाउन हॉल से, जहां पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पहले मेगा प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ्त हुई है। मॉल रोड और हॉल रोड के संगम में 5 मंजिला मोटरसाइकिल पार्किंग प्लाजा बनेगा। पार्किंग प्लाजा में 4000 मोटरसाइकिल्स पार्क हो सकेंगी, जबकि अदालती हुक्म पर लॉर्ड मेयर ने पार्किंग प्लाजा की तामीर के बारे में होमवर्क भी मुकम्मल कर लिया है। इस हवाले से लाहे अमल भी तश्कील दे दिया गया है, जबकि लॉर्ड मेयर लिक्विडेशन बोर्ड से अराजी के हसूल के हवाले से खुद बात करेंगे। लिक्विडेशन बोर्ड हुकाम से 1-2 रोज में बासाब्ता मुलाकात की जाएगी, लॉर्ड मेयर की जानिब से ये कहा गया है। इसी हवाले से बात करेंगे राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल टायड मुबशर जावेद ने माल रोड और हॉल रोड के संगम में 3 कनाल 4 मरले पर बनने वाले पार्किंग प्लाजा से मुतल्लिक होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, क्योंकि अदालत आलिया की जानिब से ये हुक्म दिया गया था लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल टायड मुबशर जावेद को कि फौरी तौर पर मोटरसाइकिल पार्किंग प्लाजा के हवाले से जो होमवर्क है वो मुकम्मल किया जाए। आपको ये बताएँ कि ये पार्किंग प्लाजा 5 मंजिला पार्किंग प्लाजा होगा, जिसमें 4000 से ज़ायद मोटरसाइकिल्स पार्क की जा सकेंगी। आपको ये बताएं कि इसी पार्किंग प्लाजा के हवाले से, चूँकि ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का पहला मेगा प्रोजेक्ट है और इसी की मुनासबत से माली साल 2017-18 के बजट में 70 करोड़ रुपए रखे गए थे, जिसकी सेक्रेटरी बल्दियात की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी दी गई, जबकि इसके साथ साथ 25 करोड़ 50 लाख रुपए लैंड एक्विजिशन की मद में डीसी ऑफिस के लिए चेक भी जो है वो तैयार कर लिया गया है। आपको ये बताएं कि लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल टायड मुबशर जावेद का ये कहना था कि जो ही जो डीसी ऑफिस और लिक्विडेशन बोर्ड हुकाम के साथ जो मामलात हैं वो 1-2 रोज़ में चूँकि तय होंगे, तो इस पर जो है वो फौरी तौर पर काम का आगाज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि नेस्पाक से तमाम जो कंसल्टेंसी है वो जो मौसूल हो चुकी है और इस हवाले से फिजिबिलिटी भी तैयार है। आपको ये बताएं कि जो ही लिक्विडेशन बोर्ड इसको अराजी को हैंड ओवर करेगा तो फौरी तौर पर वहाँ पर तामीर का आगाज़ भी कर दिया जाएगा और ये इस तामीर का आगाज़ भी कर दिया जाएगा। राव दिलशाद आखिरिया। एक मरतबा फिर आपको बताएंगे कलमा चौक पर अवामी रिक्शा यूनियन का एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। रिक्शा ड्राइवर्स ने मेट्रो ट्रैक पर धरना दे दिया,
जिसके बायस बस सर्विस है जो कि मुअत्तल हो चुकी है। एलपीजी का सरकारी रेट 113 रुपए है और फरोख्त 170 रुपए में की जा रही है। मुजाहिरीन की जानिब से ये शिकायतें की जा रही हैं, जबकि मुजाहिरीन का ये भी कहना है कि मार्केटिंग कमेटियां, डिस्ट्रीब्यूटर, दुकानदार मुनाफाखोरी में मुलव्वस हैं। डीसी लाहौर गैस की कीमतों में गिरा फरोशी पर कार्रवाई करें, मुजाहिरीन की जानिब से ये मुतालिबा सामने रखा गया है। मुतालिबात के साथ साथ अपने मुतालिबात के हक में बैनर्स उठाकर ये मुजाहिरीन जो है एहतजाज कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि कलमा चौक पर अवामी रिक्शा यूनियन का एहतजाजी मुजाहरा जारी है। फिजाई मनासिब भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। रिक्शा ड्राइवर्स ने मेट्रो ट्रैक पर धरना दे दिया है, जिसके बाद बस सर्विस है जो कि मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी है। एलपीजी का सरकारी रेट 113 और फरोख्त 170 में की जा रही है, मुजाहिरीन का ये कहना है। जबकि ये भी शिकवा किया जा रहा है मुजाहिरीन की जानिब से कि मार्केटिंग कमेटियां, डिस्ट्रीब्यूटर्स, दुकानदार मुनाफाखोरी में मुलव्वस हैं। डीसी लाहौर गैस की कीमतों में गिरा फरोशी पर कार्रवाई करें, मुजाहिरीन की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है। जबकि धरने के दौरान रिक्शा ड्राइवर्स बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर शदीद नारेबाजी भी करते दिखाई दे रही हैं। कलमा चौक पर अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से ये एहतजाजी धरना दिया गया है, मुजाहिरा किया जा रहा है मुजाहिरीन की जानिब से, और उनका कहना है जब तक उनके मुतालिबात पूरे नहीं कर लिए जाते ये एहतजाज, ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। जी हाँ, मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक मुतालिबात नहीं माने जाते एहतजाज का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। रिक्शा ड्राइवर्स ने मेट्रो ट्रैक पर धरना दिया है, बस सर्विस मुअत्तल है। हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मुनीर अहमद की ज़ेरे सदारत सीईओ कॉन्फ्रेंस हुई है और डायरेक्टर सीटीडी डॉक्टर शहनाज नदीम और डेप्यूटी सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर यादुल्ला भी शरीक हुए। इस कॉन्फ्रेंस का मजीद अहवाल जानते हैं बस्साम सुल्तान से। बस्साम, बताइएगा किस किस ने शिरकत की और शुरका का इजहार ख्याल करते हुए क्या कहना था? बिल्कुल, इंटरवेंशन न्यूरो रेडियोलॉजी जो सोसाइटी है उसकी जानिब से 17th इंटरनेशनल स्ट्रोक कॉन्फ्रेंस जो है वो उसका इनेकाद किया गया। आज इख्तितामी रोज़ इसके हवाले से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मैं आपको बताते चलूँ, फालिज जो है वो ऐसा मर्ज़ है जिससे दूसरे नंबर पर दुनिया के अंदर जो अमवात हैं उसकी वजह जो है वो फालिज है, और इससे बचाव के लिए पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक बेहतरीन फैसिलिटी का जो है वो इफ्तिताह भी यहाँ पर किया गया, लाहौर जनरल हॉस्पिटल, जिसको जो है वो डॉक्टर उमैर चौधरी रन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि सर थोड़ा सा बता दें कि इतना ज़्यादा इसका डेथ रेट है, इसके बावजूद हमारी हुकूमत की जानिब से और हमारे लोगों की जानिब से इसकी अवेयरनेस नहीं है। आप क्या समझते हैं कि हमें क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया। और ये असल में फालिज का हमारे गांव में, शहरों में यही कॉन्सेप्ट है कि एक दफ़ा फालिज हो गया तो उसका लाइलाज हो गया। ये अब चीज़ गलत हो गई है। पिछले 10-12 साल से जितनी ठीक है, बस्साम सुल्तान आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए हैं। एमपीए मिर्जा जावेद का जाती उम्रा के बाहर साबिक वजीर आजम का इस्तकबाल, गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। नवाज शरीफ एमपीए मिर्जा जावेद और कारकुनान को देखकर रुक गए। मियां नवाज शरीफ ने कारकुनान के नारों का हाथ हिलाकर जवाब दिया, जबकि मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर बजरिया रोड वापस पहुंचे हैं। मनाज़िर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया गया है, गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं। नवाज शरीफ एमपीए मिर्जा जावेद और कारकुनान को देखकर रुक गए। मियां नवाज शरीफ ने कारकुनान के नारों का हाथ हिलाकर जवाब दिया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच चुके हैं। एमपीए मिर्जा जावेद का जाती उम्रा के बाहर साबिक वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया गया है, जबकि गाड़ी पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई। नवाज शरीफ एमपीए मिर्जा जावेद और कारकुनों को देखकर रुक गए। मियां नवाज शरीफ ने कारकुनों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब भी दिया। मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर बजरिया रोड वापस आए हैं। ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। एमपीए मिर्जा जावेद ने जाती उम्रा के बाहर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की और उनका इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ एमपीए मिर्जा जावेद और कारकुनों को देखकर रुक गए। नवाज शरीफ ने कारकुनों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब भी दिया, उनसे बातचीत भी की। आपको ये भी बताएं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर बजरिया रोड पहुंचे हैं और जब वो जाती उम्रा पहुंचे, कारकुनों की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं।